Okay, students. Again, a very welcome to all of you. Let us move on to the next question. Last time we have finished till question number 5th and then the 13th one. Similar type of example हमने लिए थे. Now let us start with question number 6 onwards. The heading remains the same. Differentiate the following with respect to x. So write down solution. Now again, if this question is asked in exam, it will carry 2 marks. ठीक है? अभी सबसे पहले स्टेप क्या करना है? Write down let y is equal to 5 raised to e raised to x into sine square x. Write down first step. We always start in this manner only, all the problems. Okay. Now write down differentiating with respect to x. देखिए differentiating with respect to x. So as soon as we differentiate with respect to x, the left hand side will be written as dy by dx. This is equal to right hand side, it will be written as d by dx of bracket में आप लिखिए 5 raised to 5 के पावर में है e raised to x into sine square x. Close the bracket. Okay. Now here we are going to apply the formula for composite function. तो आपके रेफरेंस के लिए इनिशियली कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं फॉर्मूलाज देखते जाऊंगा. जस्ट ऑब्जर्व, वी नो द फॉर्मूला फॉर d by dx of a raised to x. ठीक है, तो a raised to x का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट्स? तो इट इज नथिंग बट a raised to, चलो fx है, तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन, तो इसको a raised to fx कर देता हूँ. ठीक है, a raised to x का ऑलरेडी नोन टू अस, a raised to fx into log a into f dash of x. ये a raised to fx का डेरिवेटिव का कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला है. So just note down this formula. Now this we are going to apply. Now just compare this formula with this problem. Yeah. So there was a slight connectivity issue, students. So let me tell you once again. d by dx of a raised to fx का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. That is nothing but a raised to fx into log a into f dash of x. तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करेंगे. तो a के जगह पे हमारे पास 5 है और fx के जगह पे हमारे पास e raised to x into sin square x है. So this whole thing e raised to x into sin square x, this is going to work as fx. So चलो let us apply this formula over here. So write down next step. देखो therefore dy by dx is equal to a raised to fx का फॉर्मूला देखो आप. So it is a raised to fx. So it will be 5 raised to e raised to x into sin square x. Okay. Into what will we have? Log 5 into log 5. आगे क्या आएगा? Into d by dx of fx. f dash of x मतलब क्या होता है स्टूडेंट? It is d by dx of fx. तो d by dx लेना है. d by dx किसका लेना है? तो इसका fx का. fx क्या है? तो e raised to x into sin square x. The bracket closes. ठीक है. Now initially note down the formula for your reference. ये आप लिख लीजिए. ये फॉर्मूला a raised to fx का हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है. Please make a note till here. Now this part is going to remain same. अभी हमें किसका डेरिवेटिव लेना है? d by dx of e raised to x into sin square x. So now to take the derivative of e raised to x into sin square x, we will have to apply u into v rule. इसके लिए हमें product rule of differentiation which we have learned in standard 11 वो हमें apply करना पड़ेगा. तो चलिए let us continue. Therefore next step, dy by dx is equal to 5 raised to e raised to x into sin square x into log 5 remains same. Now open up a square bracket.
u into v रूल, तो क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e रेज टू एक्स एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन लेना है. नाउ साइन स्क्वायर एक्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज साइन एक्स द होल स्क्वायर. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है और अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो होल स्क्वायर होल क्यूब करके आप उस फंक्शन को लिखिएगा. लाइक इट इज साइन स्क्वायर एक्स, राइट डाउन दिस एज साइन एक्स द होल स्क्वायर initially while practicing. So I repeat, first function as it is, derivative of the second function plus second function as it is. So sin square x as it is, d by dx of first function. So first function is e raised to x and the bracket closes. ठीक है, तो पहले हमने कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए u इंटू वी रूल अप्लाई कर रहे हैं. तो लेट्स कंटिन्यू अहेड. ये वाला पार्ट सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज टू बी मेड इन दिस. इसको हमें सिंप्लीफाई करते रहना है. तो लिखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर dy by dx is further equal to 5 raised to e raised to x into sin square x remaining same into log 5 into bracket. ठीक है, दिस e raised to x remaining same. ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा, वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ sin square x. इसका डेरिवेटिव लेना है. अभी इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो डू हैव अ लुक, आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर. यहाँ पे एरो डाल के लिख देता हूँ. टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वी हैव टू अप्लाई d by dx ऑफ fx raised to n. fx raised to n का फॉर्मूला अप्लाई करना है. व्हाई सो, फंक्शन के पावर में नंबर है, तो कभी भी फंक्शन के पावर में नंबर है तो fx raised to n का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. तो fx raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, तो n इंटू fx raised to n minus 1 into f dash of x. नोट डाउन, fx raised to n का डेरिवेटिव इज नथिंग बट n into fx raised to n minus 1 into f dash of x. तो ये फॉर्मूला किसके ऊपर अप्लाई करना है, sin x the whole square के ऊपर. Please try to understand. That's why I'm telling you, please write down the composite function के formulas. जब तक formulas हमें याद नहीं होंगे, हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है. एप्लीकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. चलिए तो अप्लाई करते हैं. तो sin x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए क्या मिलेगा, 2 sin x टू द पावर n minus 1, 2 minus 1, आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं. प्लीज चेक, n into fx raised to n minus 1 into d by dx of sin x, कंपोजिट फंक्शन है, into d by dx of sin x आएगा. तो sin x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट cos x. Please check out with this formula. n into fx raised to n minus 1 into d by dx of sin x, which is nothing but cos x. ठीक है, plus this sin square x will remain same, और यहाँ पे ये जो e raised to x है, तो this e raised to x का डेरिवेटिव is nothing but e raised to x itself and the bracket closes. ठीक है, नाउ एट द मैक्सिमम व्हाट वी कैन डू, दोनों टर्म्स को अगर आप देखोगे तो इसमें से e raised to x into sin x हम कॉमन ले सकते हैं. फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स वी कैन टेक e raised to x into sin x कॉमन. ऑब्वियसली ये जो 2 minus 1 है तो अंडरस्टूड है, दैट इज पावर 1 इटसेल्फ. ओके, चलिए तो राइट डाउन लास्ट स्टेप, लेट अस टेक e raised to x into sin x कॉमन. सो आई जस्ट रब दिस ऑफ. ठीक है, राइट डाउन लास्ट स्टेप of the example is that we are supposed to take the terms common whichever possible. ठीक है, so write down final step. I just continue it over here. Therefore dy by dx is further equal to, this is 5 raised to
ई रेज टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू log 5 into, from both the terms I am taking sin x into e raised to x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 cos x, sin x और e raised to x कॉमन गया तो इधर से 2 sin x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, तो फ्रॉम हियर विल बी लेफ्ट आउट ओनली विथ sin x, close the bracket, and this itself is the final answer, ठीक है ना। Please make a note of this. Problem is over. So we'll have to be very careful while we are finding out the derivative of the composite function. थोड़ा सा भी mistake नहीं होना चाहिए, otherwise our answer goes wrong. Please make a note of this. Then we'll move on to the next example. Okay, please note down the next question, students. The 7th one. This we are doing according to the notes. ठीक है, textual में भी ऐसे questions है, but with some changes of function that we'll discuss later on. Okay, cos square bracket log of 2x plus 3 is to be differentiated. If this is asked, it will carry again 2 marks. लिखिए solution for the problem. Write down, let y is equal to, देखो ये trigonometric function है और trigonometric function का square है, तो हम कैसे देखेंगे, will write down in the whole square form. So write down, this will be written as cos of log of 2x plus 3 close the bracket और इसका whole square है. We know cos square theta can be written as cos theta the whole square. Cos square theta can be written as cos theta the whole square. अभी बहुत ध्यान से देखना है. Now when we started last time, I have told to you कि जब हम composite function का derivative लेते हैं, we move from left towards the right. लेफ्ट से राइट की तरफ हम सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते जाते हैं अंदर की तरफ, बट ओवर हियर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका पावर 2 है, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो नाउ इन दिस केस व्हिच फॉर्मूला डू वी नीड टू अप्लाई, यू नो, तो वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स रेज टू एन. सबसे पहले पावर आएगा, आप पहले कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ले सकते. फर्स्ट कम्स द पावर. आई हैव टोल्ड यू वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इन दिस केस यहाँ पे क्योंकि फंक्शन का पावर है 2, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो एफ एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव इज नथिंग बट एन इंटू एफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. दिस फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड इन द फर्स्ट स्टेप. चलिए, तो लेट अस अप्लाई दिस. So write down, therefore लिखिए differentiating with respect to x, वो तो compulsory है, you know that. Write down first step, differentiating with respect to x. हेडिंग ही वैसा दिया है, differentiate the following with respect to x. ठीक है, तो लिखिए क्या मिलेगा, therefore dy by dx is equal to d by dx of, write down, cos of log of 2x plus 3 the whole square. ये पूरा एक ही फंक्शन है. See how am I reading this? Cos of 2x plus 3. ये पूरा एक ही फंक्शन है और उसका स्क्वायर है. So now first we are going to apply fx raised to n का फॉर्मूला. चलिए, तो I give you 30 seconds का टाइम. fx raised to n का फॉर्मूला आप अप्लाई करो. Therefore dy by dx is equal to, now when we'll apply the formula, आपको क्या करना है मैंने पहले भी बता चुका हूँ. When you are initially solving, आप fx को मार्क कर लो, फॉर्मूला को प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करो आप. तो व्हाट इज एफ एक्स, यू नो, ये पूरा एफ एक्स है. ये जो स्क्वायर के अंदर है एफ एक्स का काम करेगा. ठीक है, तो चलो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, पहले ही लिख के रखा है मैंने ऑलरेडी. ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं. तो क्या मिलेगा, 2 n इंटू एफ एक्स. एफ एक्स इज व्हाट, कॉस ऑफ लॉग ऑफ
2x plus 3 whole to the power n minus 1, 2 minus 1 power 2 है, into d by dx. किसका d by dx लेना है स्टूडेंट? तो d by dx लेना है fx का. Why? Because it is f dash of x. I have told you earlier. F dash of x means it is d by dx of fx. तो d by dx किसका लेना है? fx का. तो fx क्या है? तो it is cos of log of 2x plus 3 and close the bracket. अब इसका डेरिवेटिव लेना है. We have to take the derivative of this function. ठीक है, this is going to remain same. राइट डाउन. नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा देखो, therefore dy by dx is further equal to, this is 2 cos of log of 2x plus 3. ठीक है, ये एज इट इज रहेगा. 2 minus 1 is 1, बट ऑब्वियस है वो लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ यू कैन ओपन अप अ स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हिच फॉर्मूला डू वी अप्लाई ऑन दिस d by dx into cos of fx. वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली. तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, d by dx of cos of fx, cos fx, that is nothing but equal to minus sin of fx, ठीक है, into f dash of x. ठीक है, अभी इनिशियली तो मैं फॉर्मूलेज आपके लिए लिख रहा हूँ, बट आफ्टर सम टाइम, after few some examples, I will not be writing down the formulas every time. तो इसमें आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वो आपको याद रखना है. ठीक है, नाउ दिस फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड ऑन दिस टर्म. तो आप ध्यान से कंपेयर कीजिए, यहाँ पे fx क्या है. तो ये जो ये वाला पार्ट है अंदर वाला log वाला, ये fx है. You move from, when we find out the derivative of the composite function, we move from left to right. ऐसा जाते हैं डेरिवेटिव लेते वक्त, पर पहले पावर का डेरिवेटिव आता है, दैट केयर शुड बी टेकन. चलो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिखिए, माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ 2x plus 3, डेरिवेटिव ऑफ cos fx is minus sin fx into f dash of x. तो किसका डेरिवेटिव लेना है, d by dx of fx. अभी fx क्या है, तो log of 2x plus 3 है. अभी log 2x plus 3 का डेरिवेटिव लेना है. अभी हम ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लिकेशन. नाउ लेट्स रीअरेंज दिस. तो लिखिए आगे का स्टेप, therefore dy by dx इज इक्वल टू, ये टर्म्स को मैं थोड़ा जरा रीअरेंज कर लेता हूँ. ठीक है, राइट डाउन. -2 साइन फंक्शन पहले लिख देते हैं, -2 साइन ऑफ log of 2x plus 3, ठीक है, into cos of log of 2x plus 3. क्या किया, रीअरेंज किया. they are all multiplied, so -2 times of sin of log x 2x plus 3 into cos of log of 2x plus 3. तो ये तीनों को तो मैंने ऐसा रीअरेंज कर दिया. into, now we have to take derivative of this function. okay, now can you tell me कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर. d by dx into log of fx. वेरी गुड, यस केशव, एग्जैक्टली. तो हमें अप्लाई करना है d by dx of log of fx. तो log of fx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट 1 by fx into f dash x. अभी आप मार्क कर लो आपके हिसाब से, fx क्या है यहाँ पे, पॉलिनोमियल. ये जो अंदर है ना पॉलिनोमियल फंक्शन, ये अपना fx का काम करेगा. देखिए कंपेयर करके, log fx, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. विदाउट दिस वी कैन नॉट मूव अहेड टू द हायर प्रॉब्लम. ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का. ओके, तो log of 2x plus 3 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, 1 upon 2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3. ठीक है, log fx का डेरिवेटिव होता है 1 by fx into d by dx of fx.
एज सिंपल एज दैट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप फॉर्मूलेज याद रखो, रूल्स याद रखो, एकदम आसान है सारे प्रॉब्लम। नाउ फाइनली वी आर सपोज टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। जब तक ये डी बाई डी एक्स खत्म नहीं हो जाता है तब तक डेरिवेटिव लेते जाना है। अभी ये जो डी बाई डी एक्स है वो स्प्लिट हो जाएगा u प्लस v, ठीक है। चलो, तो नाउ यू विल टेल मी व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। 2। यस, वेरी गुड, करेक्ट, एब्सोल्युटली, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव 2, 3 कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। चलिए लिखिए नेक्स्ट स्टेप में, आई विल मेक द चेंज इन द सेम। नाउ एवरीवन जस्ट गिव मी द क्लियरेंस, इज इट अंडरस्टूड टिल हियर? हर एक स्टेप समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। अभी ये 2 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको रब करके 2 कर देता हूँ। 2x प्लस 3, आई रिपीट, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0, तो बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस और मैं रब नहीं करना चाह रहा हूँ ऊपर वाला जो पार्ट है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव आएगा इंटू 2, ठीक है। नाउ दिस कैन बी अवर फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर है, प्रॉब्लम इज ओवर। बट हो सकता है कि जो रेफरेंस बुक है या जो टेक्स्ट बुक है या जो एनसीईआरटी का बुक है, जिस भी रेफरेंस बुक से आप सॉल्व कर रहे हो, उधर हो सकता है कि थोड़ा आंसर चेंज करके दिया हो। लाइक यू कैन ऑब्जर्व दिस वाला पार्ट, ओके, ये वाला देखो, ये वाला। नाउ दिस इज नथिंग बट 2 sin थीटा cos थीटा। नाउ 2 sin थीटा cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 2 थीटा। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो रेफरेंस बुक है उसमें आंसर थोड़ा सा चेंज करके दिया हो, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके ही लिख देते हैं आंसर, नॉट कंपल्सरी। ऐसा कंपल्सरी नहीं है, आप यहाँ पे भी स्टॉप करोगे तो भी आपको पूरे 2 मार्क आपके मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू कैन ऑब्जर्व एंड इफ यू कैन सिंप्लीफाई, इट इज मोर बेटर, ठीक है। चलिए लिखिए फाइनल स्टेप, आई विल ट्राई टू राइट डाउन ओवर हियर। So therefore dy by dx is equal to, minus sign remaining same, 2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta, 2 into log 2x plus 3, ठीक है। वैसे ये सिंप्लीफाई नहीं भी किया तो भी चलेगा, but still I'm doing, into this will be written as 2 upon 2x plus 3, बस, स्टॉप इट। वैसे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 इसके पावर में भी चला जाएगा, बट ठीक है, दिस मच इज ओके। इवन यू कैन स्टॉप योर आंसर ओवर हियर, और मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है तो आई रिपीट 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, दैट्स इट। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। तो देखो कितने फॉर्मूलेज अप्लाई किए, fx रेज टू n का डेरिवेटिव लिया, cos fx का डेरिवेटिव लिया, log fx का डेरिवेटिव लिया। हा? तो सबसे पहले याद रखो, अगर पावर आता है तो पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर लेफ्ट टू राइट जाना है आपको। अगर पावर नहीं होता, सपोज ये पावर नहीं होता, तो फिर पहले cos fx का फॉर्मूला अप्लाई करते और फिर उसके हिसाब से हमें आंसर मिलता, ठीक है। चलो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। चलो राइट डाउन अगेन, दिस क्वेश्चन विल आल्सो कैरी 2 मार्क्स स्टूडेंट्स। देखिए सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, राइट डाउन, लेट y is equal to cos of x cube into, this is nothing but sin square x raised to 5. So we'll be differentiating with respect to x. So write down first step लिखिए, differentiating, this is compulsory, yeah? Differentiating with respect to x. So write down, therefore dy by dx is equal to d by dx of, open up a square bracket. अब इसको थोड़ा जरा रीअरेंज करके लिख देते हैं हम। Written, what will be this written as cos of x cube into, this will be written as sin of x raised to 5 the whole square and close the bracket. देखो sin square theta है, means that form it is, so it is sin theta the whole square. अभी जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें यहाँ पे
u into v रूल अप्लाई करना पड़ेगा. प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव इज टू बी अप्लाइड विच वी हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 11. तो लिखिए therefore dy by dx is equal to first function as it is, so cos of x cube remaining same into d by dx of second function, so it is nothing but sine of x raised to 5 the whole square plus, now second function as it is, so sine of x raised to 5 the whole square remaining same into d by dx of cos of x cube. Close the bracket. प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया. अभी क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है. वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो फर्स्ट ओनली वी कंसंट्रेट ऑन दिस. तो ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ऑन दिस पार्ट वी विल बी अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑफ fx रेज टू n. इसके ऊपर हम fx रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है. और ये वाला जो पार्ट है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज हमें करते रहनी पड़ेगी. ये वाला जो पार्ट है, इसका d by dx लेना है, तो इसके ऊपर हम cos fx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो d by dx of cos fx is to be applied. चलो स्टार्ट अप्लाइंग. तो ये तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप अप्लाई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे. तो fx रेज टू n का डेरिवेटिव इज n इंटू fx रेज टू n माइनस 1 into f dash x, and cos fx का डेरिवेटिव is minus sin fx into f dash x. ठीक है. चलिए ये हम अप्लाई करेंगे. तो when we'll apply this, पहले तो पावर आएगा, तो लिखिए therefore dy by dx is further equal to cos of x cube will remain same, open up a square bracket. Now इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें? तो it will be 2 sin of x raised to 5 to the power 1 into d by dx of sin of x raised to 5. Please check n into fx raised to n minus 1, 2 minus 1 1 होता है, into d by dx of sin x raised to 5. कंपेयर करो व्हाट इज fx. तो ये sin x raised to 5 है ना, ये अपना fx का काम कर रहा है. दिस इज वर्किंग एज fx प्लस दिस ब्रैकेट क्लोजेस प्लस ये हो जाएगा. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो दिस विल बी रिटन एज sin square x raised to 5. ओके. चलो नाउ टेल मी डेरिवेटिव ऑफ cos of x cube. Someone? Cos x cube का डेरिवेटिव, can someone tell me? Minus sin x cube. हाँ, minus sin x cube into d by dx of x cube. Composite function है स्टूडेंट्स. This is of the form cos fx. तो ये जो x cube है, ये fx का काम कर रहा है. ठीक है ना. प्लीज नेवर फॉरगेट द कंपोजिट फंक्शन. वो अगर हम भूल गए तो सब रॉन्ग हो जाएगा. तो therefore dy by dx is further equal to cos of x cube will remain same to, this is nothing but sin of x raised to 5. Now we are supposed to take derivative of sin x raised to 5. तो sin x raised to 5 का डेरिवेटिव, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? sin fx का. तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? तो cos of x raised to 5 into d by dx of x raised to 5. फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एंड नाउ द ब्रैकेट क्लोजेस. ठीक है. तो ये तो मैं लिख देता हूँ. आई विल राइट डाउन ओवर हियर विच फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग ओवर हियर. तो इट इज d by dx of sin fx. sin fx का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ऑन दिस, तो वी गेट दिस. ठीक है. आगे क्या होगा? प्लस ऑफ माइनस इज माइनस. दिस इज नथिंग बट sin square x raised to 5 into
साइन ऑफ एक्स क्यूब इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 3x स्क्वायर। चलो अभी सिर्फ किसका डेरिवेटिव बचा है, तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव लेना है। तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5? 5x raised to 4. 5. एग्जैक्टली, वेरी गुड, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5x रेज टू 4, बाकी सबका डेरिवेटिव इज ऑलरेडी ओवर। चलिए तो लिख दीजिए आपका फाइनल आंसर, यू कैन जस्ट रीअरेंज एंड राइट डाउन दैट थिंग। So therefore dy by dx is further equal to, let's rearrange this, ठीक है, so write down what will this be written as. चलो now session is almost getting over, when we rejoin we'll be solving। आप rearrange करो, x raised to 5 का डेरिवेटिव 5x raised to 4